Okay. So this is a very important aspect of the complement system, which is called as opsonization. Is this picture clear to you? आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, अब ऑप्सोनिन्स को पहले आप समझिए, कौन कौन से ऑप्सोनिन्स हैं आप. Even antibody is also working as opsonin. Okay, because it is going to bind with the antigen. If on the cell so many antigens, so many copy number of the antigens is present, and in the blood so many copies of the specific antibodies are present, so those antibody is going to bind with the antigen. So it is also coating the cell surface. Cell surface को कौन कौन कोट कर रहा है? C1q, because C1q is binding, globular head of the C1q has the specificity for binding with constant region of the antibody, and CS2 domain से bind कर गया. तो this also is working as opsonin. C1 भी जो है opsonin का काम कर रहा है. MBL mannan binding lactin, this also is working as opsonin. Antibody also works as on opsonin. ठीक है, लेकिन ये सब के लिए क्या जरूरी है? ये सब के लिए, ये सब तरह का ऑप्शन एंटीबॉडी जनरेशन होगा तब ऑप्सोनिन बनेगा, देर होगी. ठीक है, मैनन बाइंडिंग लैक्टिन मैनोज, ठीक है, ये तो चलो बढ़िया है, पोटेंट है, तुरंत अवेलेबल है. C1q कैसे करेगा? क्योंकि C1q को बाइंड करने के लिए फिर बीच में एंटीबॉडी चाहिए. ओके, CR1 के साथ सर ये कम बाइंड करते हैं. कौन? C1q. C1q binds with the constant region of the antibody, no? Yes, sir. और एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन C3b C4b फ्रेगमेंट जो है, these are the potent opsonins. अगर ऑप्सोनिन कोई पूछेगा कौन सा ऑप्सोनिन नाम बताइए, तो आप सबसे पहले C3b C4b बोलोगे. ये नहीं कि C1q एंटीबॉडी MBL मैनन बाइंडिंग लैक्टिन्स ये सब बोलोगे. ठीक है, C3 क्लीवेज प्रोडक्ट IC3b C3c C3dg ये सब भी ऑप्सोनिन्स हैं. सबसे पोटेंट तो ये सब ऑप्सोनिन कहाँ से है? इसी का बाल बच्चा है, इसी से टूट के बना, C3b C4b से. ओके, particularly C3b से. तो C3b is a potent opsonin. It is readily available. It is there in the blood, always available in the blood. Okay. तो C3 में अगर म्यूटेशन हो गया तो then the deleterious effect will come into the life of that individual. So now you can see C1q is also bound, mannan binding lactin is also bound here. Antibody जो है that has bound to the antigen. So antibody in combination with the antigen is working as opsonin. C3b C4b, see this half portion of this half, not half, somewhat greater than half. So this has bound to the surface of the pathogen. This is on opsonin. C3b cleavage, इसका छोटा छोटा प्रोडक्ट, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा, देख लो सब बाइंड किया हुआ छोटा छोटा. Okay, so these are the opsonins. Now what happens once opsonin has coated the pathogen? Now, because of the presence of the receptor for these opsonins, sub opsonin ka receptor is there in the phagocytic cell surface. Okay, है ना, रिसेप्टर सबका. देखिए CH2 डोमेन का रिसेप्टर है, हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे आपको ये सब. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, phagocytosis is mediated by many different complement receptors on the surface of macrophages and neutrophils, including CR1, CR3, CR4, CRIG. Okay, phagocytes use their FC receptors also bind to antigens opsonized by antibody binding. ये B फिगर. एक सेकेंड, खिसक गया फोटो थोड़ा, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम डिस्टर्ब. हाँ अब हुआ.
See, how many types of receptors are there present on? Various types of receptors are present on the surface of the phagocytic cell. See, CR1 is a C3b, C4b receptor, it will bind. Okay, C3 also recognizes C3b, CR4 also recognizes C3, CR3 recognizes some of the fragments of this C3b cleavage products. तो इसी तरह से डिफरेंट स्पेसिफिसिटी है। आप इस फिगर से देखिए कौन कौन किसके साथ बाइंड कर रहा है, वहीं से समझ में आ जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। CR1 इज बाइंडिंग विथ ये गोल वाला के साथ बाइंड। ये फिगर दिख रहा है? यस सर। वन सेकंड। क्या हो गया इसे? वन सेकेंड, ये थोड़ा सा हिल गया है। देखिए, ये गोल वाला क्या था, ब्लू कलर का बड़ा वाला C3b C4b। CR1 का देखिए ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया, दिस सिंबल यानी C4B जो है सर CR1 के साथ बाइंड। with C4b C3b, CR1 is binding। CR3 का देखिए ऐसा है, ये वाला है, ये खुद ढूंढिए कहां पर है इसमें कहीं, है इसमें कहीं ये वाला CR3 दिख रहा है? CR3 and CR4 are similar looking. No, it is not seen here. सर No, उसके बाद यस वाला। सर this one। हाँ, यस सर। ये भी है और ये भी है। ओके, ये तो भी, देखिए हाँ। ये C3 भी फ्रेगमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, CR3 एंड CR4। ओके, फिर अब देखिए Y टाइप का है CR1IG, this type of receptors। So CR1IG is also recognizing the fragment of C3b cleavage। Relation। ये भी ये सब CR3 CR4 CR1IG ये C3b क्लीवेज प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। FC रिसेप्टर्स, ये तो आप जान ही रहे हो, FC कांस्टेंट डोमेन है, एंटीबॉडी के यहाँ पर देखिए पीछे से पकड़ लिया, रिकॉग्नाइज किया। एंड साइन R1, नो दिस इज साइन R1। सर दिस वो ये सर। FC रिसेप्टर बोथ साइन, ओ सॉरी हम गलत बताए। सर रिसेप्टर नीचे है। हाँ, ये FC रिसेप्टर देखिए, ये है हो गया आपका यस। रिकॉग्नाइजिंग एंटीबॉडी, और साइन R1 जो है ये किसको रिकॉग्नाइज किया, C1q को। ये C1q था, C1 बाइंड किया होता है C1q को, ये रिकॉग्नाइज। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये अलग अलग ऑप्सोनिन है, ऊपर में जाके कोट कर दिया है, और इसके लायक रिसेप्टर सब मौजूद है, पहचान लिया, इसको बढ़िया से एनगल्फ कर। तो सोचिए ऑप्सोनिन का कितना बड़ा रोल है, और उसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है C3b C4b का है, उसमें भी C3 का सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आते हम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए क्या, वहीं पर रखते हुए हम लोग एक ही पन्ना में। और एक फिगर ये दूसरा फिगर है, वन सेकेंड, इसको छोटा कर दें, इसके ऊपर ये चढ़ गया है। ठीक है, बाद में ये नोट शेयर करेंगे तो अपने देख लेना, थोड़ा आंख फाड़ के देख लेना इसको। प्रमोशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन, ये पढ़ ही लिए, फिगर 613 देख लिए। इन एडिशन टू कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स ऑन एरिथ्रोसाइट्स, इन एडिशन complement receptors on erythrocytes also serve to bind immune complex। आपको हम बताए हैं CR1 present on erythrocyte has a different function where it binds with the antigen antibody complex, because antigen antibody complex is opsonized with C3b C4b। so CR1 is now, ये फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर देखिए अब आप। यस सर। बड़ा करता हूँ इसको, देखिए दिख रहा है।
इसमें Yes, sir. antigen is there, to the antigen specific antibody has bound. So this is antigen antibody complex. This is an immune complex. आप देखिए इस immune complex में हर वेरिएबल आर्म जो है डिफरेंट एपिटोप से अटैच किया हुआ है। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, या अकेले भी हो सकता था, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी बनाओ, सब अटैच्ड है एक दूसरे से। So this is a big supramolecular complex like structure is there. So this needs to be cleared from the circulation. So this is soluble immune complex because it is not bound to any surface, and this is moving in your blood. So this has to be cleared out. So for the clearance of this immune complex, क्योंकि complement का एक फंक्शन और भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। होस्ट डिफेंस जब चल रहा है, उसके बाद जब कंप्लीट हुआ तो क्लियर आउट भी करता है डेब्रिस को, सब साफ सफाई भी कर देगा। देखिए यहाँ पर यही कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ है। नाउ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मींस C3b fragments have been generated. Now C3b fragments will go and bind to the antigen immune complex. C3b fragment will bind to the antibody covalently. It has the tendency. Then C3b, now the opsonized immune complex. This immune complex is opsonized. So the CR1 molecule present on the cell surface of the erythrocytes recognize it, and because the erythrocyte is moving in your circulation, it is going through spleen, liver, brain, intestine, सब तरफ से गुजर रहा है। जब liver और spleen से गुजरता है, then the phagocytic cells present in the liver is called as Kupffer cells. These are the Kupffer cells, and Kupffer cells के ऊपर बहुत सारा CR1 receptor है, ठीक है। Clearance of circulating immune complex by reaction with receptors for complement products on erythrocytes and removal of these complexes by receptors on macrophages in liver and spleen. Because erythrocytes have fewer receptors than macrophages, the latter can strip the complexes from the erythrocytes, so they pass through the liver or spleen. Deficiency in this process can lead to the renal damage due to accumulation of immune complex. तो अगर ये immune complex के इस पूरे मैकेनिज्म में कहीं वो आ गया डिफिशियंसी, तो किडनी डैमेज हो जाता है। क्यों किडनी डैमेज होता है? सबसे पहले अफेक्ट होने वाला वही ऑर्गन है, ग्लोमेरुलर फिल्टर जो है वो जाम हो गया, बिकॉज ऑफ दिस सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स, फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो किडनी विल बी डैमेज्ड। सो यहाँ पर अंतर क्या रहता है? द कॉपी नंबर ऑफ द CR1 मॉलिक्यूल इज मोर ऑन द कुफर सेल्स, इट इज हाईली डेंस्ड, बहुत ज्यादा कॉपी नंबर है, तो जहाँ ज्यादा कॉपी नंबर है वो ज्यादा अच्छा से इसको कैच कर लिया इम्यून कॉम्प्लेक्स। यहाँ तो सिंप्लिसिटी के लिए 4 दिखाया आपको, देखिए यहाँ पर कितना से अटैच्ड है? 2 के साथ, दिख रहा है आपको? Yes, sir. because of the less copy number present on erythrocyte surface, 2 से अटैच हो गया है। अगर इंटरनलाइज कर गया तो CR1 कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है, और एंटीबॉडी भी और भी ज्यादा, इसमें 4, 6, 8, 10 भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस में इन्वॉल्व, तो उससे ज्यादा मोर नंबर ऑफ इंटरेक्शंस have been established in this case, तो ये छूट जाएगा। ये ताकतवर होगा कि ये ताकतवर? 4 आदमी खींच रहा है, इधर 2 आदमी खींच रहा है, कौन ताकतवर ज्यादा होगा? तो इस तरह से कुफर सेल जो है खींच लेता है इम्यून कॉम्प्लेक्स RBC से। लेकिन कुफर सेल तो अस्थिर है, एक जगह बैठा हुआ है लिवर के अंदर, वहां तक ले जाने का काम यह धीरे से इसको हल्के से पकड़ के ले गया उसको। चलो भैया आपको हम दुनिया दिखाएंगे, तो ले गया वहां पर, उसको दे दिया कुफर सेल के हवाले कि इसका ट्रीटमेंट करो। ओके, तो दिस इज द रोल ऑफ द ऑप्सोनाइजेशन। 2 दिखा दिए आपको, एक तो यहाँ है फॉर द इंटरनलाइजेशन ऑफ एंटायर पैथोजन एंड फॉर द क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। दिस इज फिगर 16-14, यही फिगर था 16-14, और ऊपर वाला फिगर 16-13, ये 16-13 था, दिख रहा है। And although less Yes, visually compelling than MAC formation, opsonization may be the most physiologically important function assumed by the complement components. देखिए
आपको लग रहा होगा कि ये देखने से, पूरा पढ़ने से, कि ऑप्सोनाइज सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे का, दैट इज मैक फॉर्मेशन। मैक फॉर्मेशन तो है ही, ठीक है, बट सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्सोनिन्स। दिस इज वेरी एसेंशियल। ऑप्सोनिन्स प्रोड्यूस हो गया, अगर ऑप्सोनिन्स गायब हो गया, किडनी डैमेज हो जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियर नहीं होगा। मैक फॉर्मेशन तो नहीं भी हो तो चलो कोई बात नहीं, बाद में अदर मैकेनिज्म्स विल टेक केयर ऑफ दैट, ओके, पैथोजन, बी सेल, इम्यूनिटी, टी सेल। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनिन अगर नहीं हुआ, अगर C3 में म्यूटेशन हो गया, C3 जीन में, एंड द C3 protein is not functionally active or the defective protein has been produced, then the entire process will be गड़बड़। तो उस पर्सन के अंदर ऑप्शनाइज बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट नहीं होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन से एलिमिनेट नहीं होगा, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, ओके। आवाज आ रही है क्या मेरी? नेटवर्क स्लो है क्या? यस सर, ओके, थोड़ा थोड़ा सा सा चला गया था सर। नेटवर्क स्लो लग रहा होगा मेरे को। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। ऑप्सोनाइजेशन मे बी द मोस्ट फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन assumed by the complement components. This is the most important function. फिर भी मे भी लगाया है, सोचिए इन्वेस्टिगेटर लिखने वाला कितना होशियार है, मे बी लगाया। क्यों? अभी तक हमको जितना भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है रिसर्च से कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, हो सकता है कि मैक कोई बाद में और पता लग जाए, मैक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा, ओके, तब फिर वो भारी, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा मैक का। लेकिन अभी ऑप्सोनाइजेशन का पलड़ा भारी है, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन विथ एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट, ऑप्सोनाइजेशन भी हो रहा है, एंटीबॉडी भी है, और कॉम्प्लीमेंट proteins भी है, other type of complement protein, these all together provides critical protection against viral infection also. So antibody and complement can create thick protein coat around a virus that neutralizes viral infectivity by preventing the virus from binding to receptors on the host cells. It also promotes phagocytosis via complement mediated receptors followed by intercellular destruction of the digestive particle. तो पहले तो एक तो ये तरीका भी, ऐसे भी वायरस वायरस के ऊपर भी ऑप्सोनिन जमा हो सकता है, ओके। अगर वायरस जो है क्विकली सेल के अंदर नहीं घुसा जब तक वो बाहर है, इसीलिए वायरस जो है इवॉल्व हो गया, रिसेप्टर मीडिएटेड एंट्री मारता है वो। कोई स्पेसिफिक सेल को यूटिलाइज करके उसके रिसेप्टर को इवॉल्व हो गया है, उसके रिसेप्टर से का जो स्पेसिफिक लाइगेंड बाइंड करेगा, उस लाइगेंड को मिमिक करता है और रिसेप्टर से बाइंड करके सेल के अंदर घुस गया। जब तक उसके ऊपर एक्ट करेगा ऑप्सोनाइजेशन वगैरह, तब तक वो घुस गया अंदर। अब अंदर में तो होगा नहीं ऑप्सोनाइज, लेकिन जब तक वो बाहर है तब तक opsonization with antibody and complement provides critical protection with the viral infection, ठीक है, बाहर जब तक है। तो अगर उतने देर में, क्योंकि opsonins are present in your body, तो वो बाइंड कर सकते हैं। और कुछ जो है ऑप्सोनिन बाइंड किया हुआ है फिर भी सेल के अंदर एंटर कर गया, तो सेल के अंदर एंटर कर गया तब ऑप्सोनिन का अब कोई काम नहीं है। सेल के अंदर अगर ऑप्सोनाइज वायरस घुसा भी है तो वो ऑप्सोनिन कुछ नहीं कर सकता है अंदर द सेल, क्योंकि सेल के अंदर तो ऑप्सोनिन के स्पेसिफिक रिसेप्टर है नहीं, रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर ऑप्सोनिन्स आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। तो एंट्री मारने के बाद नहीं, एंट्री मारने से पहले तक में ऑप्सोनाइजेशन विथ एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड्स critical protection against viral infection. And antibody and complement can create a thick coat around the virus that neutralizes viral infectivity by preventing the virus from binding to receptors on the host cells. ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर वायरस जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर के लाइक कोई प्रोटीन लाइगेंड अपना सरफेस एक्सप्रेस कर रहा हो, अगर वायरस के सरफेस पर दैट लाइगेंड इज देयर, आवाज आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है क्या?
ठीक है, अगर नहीं आएगा और रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। यहाँ तक खत्म कर देते हैं। आ रही है सर। प्रमोशन ऑफ इन्फ्लामेशन फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड फंक्शन यहाँ तक खत्म कर लो कम से कम आज, ओके, ताकि ऑप्शन खत्म हो जाए। एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट कैन क्रिएट ए थिक प्रोटीन कोट। तो उस थिक प्रोटीन, जैसे यहां पर कर रहा है, प्रोटीन कोट हो रहा है ना, बैक्टीरिया के ऊपर भी तो कोट हो रहा है ना, ठीक है। तो Yes, sir. वायरस के ऊपर भी अगर कोट हो गया इसी तरह ऑप्सोनिन्स का, तो क्या होंगे, वायरस के ऊपर जो स्पेसिफिक लाइगेंड है, जो इवोल्यूशन करके मिमिक कर लिया है हमारे होस्ट रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए, ताकि वो इंटरनलाइज कर सके वायरस, because of the coating with the opsonins and antibody, those proteins will be masked। वो उसके ऊपर चढ़ गया, वो ढक गया उससे। तो अब जो है स्पेसिफिक लाइगेंड जो वायरस सरफेस पर थे, that is not accessible for the specific receptor which is present on the cell surface। जैसे कोविड का अगर वायरस अच्छे से ऑप्शनाइज्ड हो जाए तो क्विकली एंट्री मार देता है तुरंत सेल में। अगर ऑप्शनाइज्ड हो जाए तो उसके ऊपर होता ही होगा, ऑप्शनाइजेशन भी होता ही होगा, वहां पर कुछ ऑप्शनाइजेशन हो गया, कुछ छूट गया, जो छूट गया अंदर चला गया, ओके। ऑप्शनाइजेशन होने के बाद उसका जो लाइगेंड है वो मास्क हो गया, एक ऑप्सोनिन उसके ऊपर चढ़ गया, दैट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द होस्ट सेल, which will help the virus to get internalized in the cell। सेल के अंदर वायरस फिर अपना लाइफ साइकिल करेगा। कहाँ थे, यही कह रहा है, एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट कैन क्रिएट ए थिक प्रोटीन कोट around a virus that neutralizes viral infectivity by preventing the virus from binding to receptors on the host cell, okay। It also promotes phagocytosis via complement receptors, followed by intracellular destruction of the digested particle। तो phagocytosis में भी हो सकता है, होता है, ठीक है, क्योंकि अगर और सब काम कैसे हो रहा है, ऑप्शनाइजेशन की वजह से हो रहा है। ऑप्शनाइजेशन से उसके अपने प्रोटीन्स भी मास्क हो गए, ताकि अब वो एंट्री नहीं मार सकेगा, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस भी प्रमोट हो सकता है, क्योंकि ऑप्सोनिन के रिसेप्टर मैक्रोफेजेस के ऊपर है। ये भी हो रहा है वायरस के साथ। तो वायरस का देखिए इन्फेक्शन में क्या फेट है, पहले तो उसका एनकाउंटर हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से, ऑप्सोनिन से। ऑप्सोनिन अगर उसको मास्क कर दिया, ठीक है, तो दैट इज वायरस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द एंट्री। वो वायरस तो बढ़िया से एलिमिनेट हो गया, लेकिन नहीं मास्क हो पाया, वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए या एंट्री हुआ। अगर किसी तरह वो एक सेल के अंदर एंट्री कर गया, तो वहां तो लाइटिक साइकिल में वो फिर वन कॉपी विल लीड इनटू मिलियंस ऑफ कॉपीज इनसाइड द सेल, एंड व्हेन द सेल विल रप्चर, वायरस का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होता है। तो तब शुरुआती स्टेज में अगर ऑप्शनाइज हो गया तो उसका हो जाएगा टेक केयर। Antibody and complement can create a thick protein coat around the virus that neutralizes, and it also promotes phagocytosis। फिर उसके बाद ऑप्सोनिन से हो गया, तो अगर फिर उसका phagocytosis भी हो सकता है via complement receptors, followed by intracellular destruction of the digestive particle। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पर हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक उसी तरह। ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए कब लूंगा, और 4-5 डेज। सर आया क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? सर क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, क्वेश्चन से तो मेरा दीज आर द फूड्स फॉर मी। क्वेश्चन बोलो, पूछिए। अभी रिसेंटली सर बायोलॉजिक्स और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट करके कुछ पीएसी करके कुछ आया है पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए। तो सर ये बायोलॉजिक्स और एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स क्या है? अच्छा ठीक, मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, या आपका टर्म एग्जैक्ट बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पैनक्रिएटिक्स? यस सर, पेनक्रिएटिक कैंसर प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स। ओके ठीक है, चलो इसको देखते, पहले देख लेते हैं टर्म। प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स, एंटीबॉडी कॉन्जुगेट।
conjugates, ठीक है, इन पैंक्रिएटिक कैंसर। कुछ नया चीज होगा, मैं नहीं पढ़ा हूं इसके बारे में, देखते हैं क्या है। प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स इन पैंक्रिएटिक कैंसर। No results. One sec. स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ओह, हिंदू में पढ़े हो है ना, अच्छा, तभी मैं सोचूं यूपीएससी सर उसी का कल हाँ का पाठ। हाँ हाँ, गुड गुड गुड। यूपीएससी का तैयारी में ये चीज पढ़े हो, देखते हैं भैया, हम मेरे लिए भी नया चीज है, थैंक्स टू यू, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। New approach to drug delivery combines biologics and antibody drug conjugates. अब ये फुल आर्टिकल कैसे आएगा? ये तो पैसा मांग रहा है, फुल आर्टिकल दिखाइए नहीं रहा है। भेजो तो स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप में, हिंदू होगा तो उसका व्हाट्सएप काट के भेजो तो हमको, ओके सर। स्क्रीनशॉट भेजो तो, और दूसरा, तब तक हम दूसरा आर्टिकल देखते हैं। How do antibody drug conjugate work? Okay, antibody drug conjugates are a new class of highly potent biological drugs. मीन्स इसमें एंटीबॉडी कॉन्जुगेट किया हुआ है। ओके, बिल्ट बाय अटैचिंग ए स्मॉल मॉलिक्यूल एंटी कैंसर ड्रग और अनदर थेरेप्यूटिक एजेंट टू एन एंटीबॉडी with either a permanent or labile linker. The antibody target, oh, it's very simple man। देखिए क्या है ये, आपने क्या टर्म बोला था? प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स इन पैंक्रिएटिक कैंसर। नहीं, फिर मैंने बंद कर दिया, अच्छा चलो कोई नहीं। आवाज आ रही है क्या मेरी? सर यस सर। ओके, स्क्रीन शेयर कहाँ गया? देखिए आप समझिए मेरी बात। ये एक्चुअली ड्रग डिलीवरी, दिस क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। मतलब दिस इज नॉट प्रॉब्लम, दिस इज ए चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट। कैसे एक ड्रग को हम, एक पर्टिकुलर सेल जो है कंसंट्रेट कैंसरस हुआ है, पर्टिकुलर ऑर्गन में some types of cells have become cancerous। तो अब आपको क्या करना है, क्या टारगेट है, क्या चुनौती है कि स्पेसिफिकली यू किल दोज सेल्स, कैंसरस सेल्स, ओनली दोज कैंसरस सेल्स। either you kill it or you treat it with some drug। so how you will achieve that? if you give the drug to the patient, then that drug will be available for all type of cells in that person। वो हेल्दी सेल्स के लिए भी वो ड्रग है कि नहीं है, और वो कैंसरस सेल्स के लिए भी दैट ड्रग इज अवेलेबल। कैंसरस सेल्स के लिए भी because you have taken it generalize it in the body। किसका आवाज लिखो हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन मुझे, अच्छा कोई बात नहीं, मैं
तो ठीक है, ड्रग डिलीवरी के लिए अब चूंकि कैंसरस सेल्स के पास ही वो ड्रग जाना चाहिए, अदर हेल्दी सेल्स के पास वो ड्रग अगर गया, डिलीवर हुआ इन दैट साइटोप्लाज्म, इफ इट इंटरनलाइज, द हेल्दी सेल्स विल बी आल्सो डेड। तो यही है कैंसर थेरेपी में, दिस इज अ बिग चैलेंज। जो जैसे कीमोथेरेपी चलता है, कीमो इज ए जनरल थेरेपी, इट कीमो विल किल ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी, कैंसरस सेल भी, नॉन कैंसरस सेल भी। इसलिए कीमो पड़ने के बाद देखोगे कि पेशेंट जो है काफी वल्नरेबल हो जाता है फॉर अदर काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन, उसका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, बॉडी कमजोर हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ये सब कमजोर हो जाते हैं सब। लेकिन बदले में कैंसर सेल को मारने के लिए अदर सेल्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। समझ रहे बात को? तो अब अगर इसके साथ हम ड्रग के साथ कोई एंटीबॉडी कॉन्जुगेट कर दें, then that antibody is specific for its antigen, and if that antigen is present on the target cell only, then the drug will be delivered to that target cell only. Yes or no? Yes, sir. So this is about your, if you target the protein antibody conjugate, either you conjugate it with a drug or any other protein or any other antibody, anything, बस एक एंटीबॉडी के साथ आप उसको अटैच कर दीजिए। एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स आर ए न्यू क्लास ऑफ हाईली पोटेंट बायोलॉजिकल ड्रग्स। हाईली पोटेंट बायोलॉजिकल ड्रग्स है क्योंकि इसका ड्रग डिलीवरी जो है स्पेसिफिक जो सेल है जिसमें गड़बड़ी हुई है वहीं पर ये जाकर के ड्रग जो है उसी को डिलीवर होगा, अदर सेल्स को डिलीवर नहीं हुआ। पोटेंट बायोलॉजिकल ड्रग्स built by attaching a small molecule anti-cancer drug, पैंक्रियाटिक में भी, लंग में भी, जो भी कैंसर है सब में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। दिस स्ट्रेटजी, स्मॉल मॉलिक्यूलर एंटी-कैंसर ड्रग और अनदर थेरेप्यूटिक एजेंट टू एन एंटीबॉडी विथ ईदर ए परमानेंट और लेवाइल लिंकर। इसका मतलब क्या हुआ? परमानेंट और लेवाइल लिंकर। ओके ओके ओके। परमानेंट लिंकर मीन्स द एंटीबॉडी एंड ड्रग के बीच जो लिंकिंग है दैट इज परमानेंट, मीन्स दैट कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन। एंड द लेवाइल लिंकर इज लिंकिंग इज एंटीबॉडी एंड द ड्रग के बीच द लिंकिंग इज कैन बी ब्रोकन इजिली। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग इन विच परमानेंट और लेवाइल दोनों तरह का कर सकता है, ये किया जा सकता है। The antibody targets a specific antigen only found on target cells. ठीक है, only target cell. Have I answered your question? Yes, sir. Okay. Antibody drug conjugates are drug design, ये तो बता ही दिए। हाँ, antibody drug conjugate work like a smart bomb directed against cancer cells only. Okay, because the drugs designed to target specific cancer cells and release a toxic drug into the cancer, because that is toxic for other healthy cells also, so that will be damaged. Okay, ठीक है। Sir, it basically means that biologics जो कि डिफेक्टिव प्रोटीन है और ये एंटीबॉडी दोनों को कंबाइन करके कुछ हुआ है। नहीं 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 नहीं, डिफेक्टिव, फिर अब इसका मतलब नहीं समझा। टारगेट क्या है? कैंसरस सेल। कैंसरस सेल को या तो आप ठीक कर दीजिए, ट्रीट कर दीजिए, उसका जो पाथवे गड़बड़ या तो उसको ट्रीट कर दीजिए, या नहीं तो नहीं ट्रीट हो रहा तो उसको स्पेसिफिकली आप कैंसर सेल्स को किल कर दीजिए, तो इलाज हो गया। तो स्पेसिफिकली टू किल द कैंसर सेल, एंटीबॉडी विल बी अटैच्ड विद सम एजेंट and that agent is responsible for the killing of that cell. An antibody is conjugated with that agent. Okay, so now the antibody is going and binding with that specific cell, cancerous cell से ही वो antibody bind कर रहा है, क्योंकि antibody cancerous cells के ऊपर जो surface marker है उसके against antibody generate किया गया, specific antibody, और उस specific antibody से आप either with the leval linker or permanent linker you attach your drug, then the drug will be delivered directly to that cell only, not other type of cells.
क्योंकि अदर टाइप ऑफ सेल को भी किल कर देगा, तो दैट विल बी द डेंजर. सो दिस इज अ वेरी पोटेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम. हैव आई Okay. आंसर्ड योर क्वेश्चन? क्या अभी भी कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं. ओके. तो कहने का मतलब हुआ कि एंटीबॉडी तो प्रोटीन है ही, ड्रग भी आपका प्रोटीन हो सकता है, या कोई शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, या कोई बेंजोइड रिंग का कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई फिनोल रिंग का कंपाउंड हो सकता है. एनीथिंग, ड्रग कैन बी एनीथिंग. ओके. ड्रग कैसे बनता है? अब जैसे कोई एंजाइम है, अब एंजाइम को हमको सेट करना है. पैथोजन अब इन्फेक्ट किया, बहुत तरह का एंटीबायोटिक्स है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस को सेट करते हैं. ठीक है. अब और भी तरह के ड्रग हैं. व्हाट दे डू? बायोलॉजिक आपका जो पैथोजन का एंजाइम है, उसका एक्टिव साइट को एनालाइज कर लिया गया कि क्या उसमें किस तरह का मॉलिक्यूल फिट हो सकता है, उस मॉलिक्यूल को कंप्यूटर पर डिजाइन करके प्रोड्यूस कर लिया. ये क्या हो गया? ठीक है. तो आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लिया, दैट विल फिट इनटू द एक्टिव साइट. तो आपका पैथोजन का एंजाइम इज सेट नाउ. सो अब आप प्रोटेक्टेड हैं पैथोजेनेसिस से. इसी तरह ड्रग डिलीवरी, ड्रग का आविष्कार होता है, नया नया ड्रग का. किस पैथोजन में कौन एंजाइम उसके लिए एसेंशियली रिक्वायर्ड है, उस एंजाइम को सेट कर दो. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, चलो.